experience, guiding UG, PG, and PhD scholars with excellence. She has successfully supervised and completed 5 PhD candidates during the period 2016 to 2025. Her research contribution is commendable with 25 research papers published in International Referee, Scopus and SCI Index journals, earning her recognition in the global academic community. Now, request to Principal Ma'am, Dr. Lina, welcoming our eminent speaker, Dr. Archana Sawhney Ma'am. Please, ma'am, come on stage. Welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am. We are truly privileged to have such an eminent academician with us today. Ma'am, we extend a warm and heartfelt welcome to you and request you to enlighten us with your valuable knowledge and experience. Please, ma'am. Thank you so much. Should I start? Yes, ma'am. Actually, I want to run more PPT. Okay. Should I give? Where is the computer? नहीं आपने लैपटॉप लगा दे लैपटॉप लगा हेल्प आपका प्रेजेंटेशन इसमें नहीं मैंने भेजा था लेकिन when I was planning I made certain changes so I want that to be specific. I give that अभी यही है देखो सर्किट की अगर जरूरत पड़े तो बता देते हैं। आप लोग इसी फील्ड में उसमें तो आपका बहुत हो जाता है उसमें आप जानते हैं This 9 and 13 and LEXT 9 and 13 ये 14 हाँ 14 ये प्रोग्राम ऊपर वाले हाँ इसमें यहाँ so ये जो डिजाइन वाला है वो भी ओपन कर दीजिए हाँ और सोलर पीपीटी अभी मैं सोलर पीपीटी जो लिस्ट वाला है वहाँ से शुरू करूँगी हाँ हाँ ठीक है पहले ऑप्शन है एक थोड़े करने वाली ये डिजाइन सोलर डिजाइन
morning, all of you. Sorry for being late. Actually, this is solar energy, what about which I'm going to speak on today. Solar energy, a career option. It is there, of course. The thing we want to understand is what is solar energy, how does it work, what is important in that. Renewable and non-renewable. There are two areas, renewable and non-renewable. How many of you have seen or visited Renewable Energy Ministry of Renewable Energy? Please raise hand. So I'll start with that. No. How much you know about solar energy or renewable energy? No? Is there anyone who's working in this area? Okay. So I must start with the basics part. I must start with the basics. Please next. When we talk of solar energy, we have to understand what is a sun, how does it give us energy, how it's going to give us the energy. sun का जो रोटेशन है अपनी जगह पर, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ. अगर हम देखते हैं सन को तो हमें क्या दिखता है? The sun is moving, but actually it is not the case. Earth on which we are staying is moving. So there are different phases of the solar energy. There are so many phases of the solar energy, and we can use that solar energy and what ample of option. Ample of option है तो हमें उसको use करना है. कैसे use करेंगे हम? हमारे पास solar radiation मिलते हैं, तो उसको हम thermal form में भी कर सकते हैं और PV में भी कर सकते हैं. There are the two options, thermal और PV. Thermal और PV को अगर हम देखें तो कैसे, as the name suggests, what is thermal? Thermal energy is where we are going to convert it into heat. Solar energy का transformation to heat. और PV जो है photovoltaic technology, this is about, what is it about? Photovoltaics. It is converting solar energy to electricity. What type of electricity? Can anyone tell me? What is the type of electricity we receive? It is DC. Yes, definitely yes. Solar PV का जो transformation हो रहा है, we are getting the output in DC. Please change the slide. So this is India. So in this India, we are seeing that there is the potential differences, how we are receiving the solar intensity all over the places. Next. The radiations, this is the type, उसी को रखो. The incoming solar energy is 100%. It is reflected by atmosphere, that is about 6%. Reflected by clouds 20%. Reflection from Earth's surface 4%. उसके बाद भी absorbed by land and ocean is 51%. So this is how we see that the radiation of solar energy यूजेज कम्स ओवर. तो जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है वो एम्पल में है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते. सोलर ऐसी करंट के रूप में एक साथ बहुत दूसरा साथ पूरा भारत प्रोवाइड कर सकते हैं. एक मिनट आप माइक लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर पूछिए कहाँ से आप हैं, उस हिसाब से आपको जी. मेरा नाम रंजीत कुमार शाह है और मैं बीटेक सीएससी का स्टूडेंट हूँ. मैं बिहार भोपाल जिला का रहने वाला हूँ. जी. मेरा क्वेश्चन है कि जो सोलर सिस्टम पैनल जो होते हैं वो डीसी करंट के रूप में कार्य करते हैं, तो इसके जो होते हैं डीसी तो एक स्थान दूसरा पड़ता है. तो मेरा मानना है कि अल्टरनेट करंट के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचा सकते हैं, पूरे भारत में की भ्रमण हो सके बिजली की.
सोलर एनर्जी जो सोलर पीवी वाला जो पार्ट है, पीवी वाला जो पार्ट वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम स्टैंड अलोन कर सकते हैं और दूसरा ये है कि हम ग्रिड कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो we can have solar energy in two forms. We can have a standalone system or we can have a grid connected system. जो standalone system है, जैसे ये हमारा हॉल है, इस हॉल में हमें कुछ लाइट्स दिख रही हैं, एसीज दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल लोड जो है उसको हम देखते हैं, तो उस लोड के हिसाब से हमें सोलर एनर्जी की डिजाइन करनी है। वो कंटेंट भी मैं आपके लिए कवर करूंगी। ठीक है, आई जस्ट हैड सो मेनी स्लॉट्स एंड ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक और द क्राउड। जैसे हम लोग आप क्या सीखना चाहते हैं उसके हिसाब से मैंने कुछ तैयारी करी है। तो इसमें ये है कि हमारा अगर हम बात कर रहे हैं, आप ग्रिड कनेक्टेड बोलते हैं, तो हम फिर सब जगह दे रहे हैं, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीसी को तो दे नहीं सकते, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में। हाउ मेनी ऑफ यू आर इलेक्ट्रिकल पीपल, प्लीज रेज हैंड्स। वन, नो, बाकी नहीं। तो हमें इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इट इज एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो मैं अब फिर से आ जाऊं अपने पार्ट पे। ओके, so this is the Earth's energy diagram which is telling us, okay, the differentiation is that next कर दीजिए। received energy, radiations, visible, ultraviolet। जो सोलर पीवी है वो विजिबल रेडिएशंस 47 ऑफ द एनर्जी, 47% ऑफ द एनर्जी, तो उसी को कन्वर्ट करता है। बेसिकली हमें क्या मिल रहा है फोटोन। वी आर गेटिंग फोटोन व्हिच स्ट्राइक्स द सोलर पैनल एंड फोटोन से कन्वर्जन होता है। जैसा हम आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पढ़ा होगा तो एक पीएन जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, उसमें इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, फोटोन स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, देयर आर फिंगर्स एंड देयर इज अ बस। आई विल शो यू द फिगर आल्सो। ठीक है, देयर आर फिंगर्स एंड देयर इज द बस, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो ये उसी के डायग्रामेटिक व्यू है। डिपेंडिंग अपॉन दीज कन्वर्जन्स, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ पार्ट। तो ये आपका जो फिजिक्स है जो सभी ने पढ़ी हुई है उसी से रिलेटेड है, और यू कैन से दैट सोलर पीवी इज मोर अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स इफ यू वांट टू डू रिसर्च ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट। Solar energy can be used directly for heating and lighting homes and businesses, for generating electricity, for water heating, for solar cooking. क्या क्या applications आपने इसमें से देखे हुए हैं? How many of you use solar cookers at home? How many of you have got solar cookers at home? No. तो solar cooker cooking जो है वो भी एक अच्छा option है. Only thing is that of course there are different types of solar cookers. वो जो हम यूज कर रहे हैं सोलर को थर्मली यूज कर रहे हैं, दैट इज थर्मल एनर्जी कन्वर्जन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। तो सोलर कुकर्स जो है वो थर्मल एनर्जी हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे हम फूड को कुक करें अबाउट 3 आवर्स में। हम अगर अच्छी धूप है तो सोलर को हम इंक्लिनेशन पे प्रॉपर रखते हैं। हमारा इंक्लिनेशन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोथ फॉर सोलर थर्मल्स एंड पीवी, दोनों के लिए ही इंक्लिनेशन एंगल की जरूरत पड़ती है। कैसा होना चाहिए? जो हमारी सन रेज आ रही है उससे परपेंडिकुलर मिरर रखना चाहिए और रखना चाहिए। तो दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो वो इट फॉल्स ऑन द मिरर, concentrates it at the focal point, and focal point we are getting the process of heating or cooking of the food for the solar cookers. Water heating, solar water heater किन किन लोगों के घर में लगे हैं? कुछ लोगों के पास है। सोलर वाटर हीटर में क्या है, आप या तो गीजर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर। हाउ मच इज द वाटेज कंजम्पशन ऑफ गीजर्स? इट्स अबाउट 3000 watts, अबाउट 3000 watts कोयल उसमें लगी होती है। अगर हम सोलर वाटर हीटर यूज कर रहे हैं तो वी आर सेविंग दैट मच ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द इनपुट? इनपुट कितना होता है सोलर एनर्जी में? व्हाट इज द इनपुट?
we are giving to the solar energy. It is freely available. Freely available. Only thing is the installation cost. इस शुरू का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम लगा रहे हैं वही करना पड़ेगा, उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सोलर कूलिंग रेफ्रिजरेटर के लिए भी सोलर एनर्जी, सोलर थर्मल ऑप्शंस यूज होते हैं, उनके भी फोमोस डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। So this is solar energy, as I told you, it is electrical applications and thermal applications. The types of applications would be there. Electrical में PV plants हैं, CSP plants हैं, street lighting है, water pumping है। Street lights तो बहुत ही अच्छा application है solar energy का। किस तरह से, how it is beneficial? Street lights में आपके पास पैनल लगा होता है, उस पैनल पे सनलाइट आती है, तो इट इज चार्जिंग योर बैटरी। So once it is charging the battery, it is energy is being stored. When energy is being stored, you can use it during day hours and night hours both. अगर हम renewable energy में solar energy और wind energy दोनों को ही compare करते हैं, तो what happens? Solar energy is available only during the availability of sun, and wind energy is available 24 hours, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। जब 24 hours के लिए अगर हम देख रहे हैं तो wind available है, तो we say that we will go for the wind option, but the growth is parallel. This is the basic information we want to have. What type of light we have? Mostly LED है कि halogen है? LED है। तो LED का नॉर्मली पावर कंजम्पशन कितना होता है? LED का पावर कंजम्पशन कितना होता है? It starts from basics, है ना? 9 watt होगा, 15 watt होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं, और उसमें हमें sufficient लाइट मिलती है। तो अगर हमारा 15 watt मान लेते हैं कि 15 watt का कंजम्पशन इतनी लाइट्स में है, and we count the number of lights. So number of lights will give us what? Number of lights multiplied by the wattage will give us the total watt consumption for the lights. And number of fans, we have 3 and 4 wall fans here, and this fan will be consuming about 30 to 40 watts, ठीक है। तो वो अभी हमने किया, तो हमारा टोटल लोड इस रूम का AC, it's not compulsory during the winter season, so we are not using AC. तो अभी का लोड इस हॉल का कितना होगा? How many lights we have? बेसिकली तो 10 की 3 लाइन्स हैं, और ये 5 की हमारी अप्रॉक्स 40 मल्टीप्लाइड बाय 15, हाँ 161 है ना। हाँ, तो इसके लिए मतलब हमें टोटल लोड कैलकुलेशन, हम किसी भी हॉल में जाते हैं उसको हम से कनेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट इज द टोटल लोड इन, कितना लोड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंज्यूम कर रहे हैं कितने आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे 9 o'clock से शुरू होता है टाइम और नियरली 5 o'clock तक रहता है, तो हाउ मच इज द आवर्स? 8 hours है ना। तो 8 hours multiplied by the load will give us one factor. What that factor is known as? उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? अगर हमने यहाँ का कितना लोड बताया था, वोल्टेज 1600, तो 1600 watt multiplied by 8 hours, how much it comes out to be, and what is the unit? Energy है ना, it is energy. Now we were talking about power. When we multiply power with time we get energy, ठीक है। तो हमारे सारे कैलकुलेशंस, क्यों हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द ऑर्गेनाइजर्स और व्हाटएवर हैव टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए, और 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम करते हैं अगर, तो इस टाइप से कैलकुलेशन हम समझते हैं। और अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें 1600 वाट के लिए एक सोलर पैनल डिजाइन करना रहेगा।
that will be our requirement. So these are the various options which we can use from the solar energy. इसमें अगर हम थर्मल की बात करें तो एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक CSP टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. CSP is concentrated solar power. CSP is concentrated solar power. Concentrated solar power मतलब जैसे ये लैंप है, इसमें लाइट क्या ऊपर की तरफ जाती है, कुछ लीकेज है, वो जा सकती है नहीं, इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा है. रिफ्लेक्टर इज पुशिंग डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. ठीक है, तो ये लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टर ऑल द लाइट गिवन बाय द बल्ब और द सोर्स इज कमिंग डाउन. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग. तो वो अगर नीचे आ रही है दैट मीन्स एक रिफ्लेक्टर लगा है. CSP में यही होता है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लाइट को. सोलर एनर्जी अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर हम CSP यूज कर रहे हैं तो काफी हमें मिलेगी लाइट. ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए. तो ये फोटोवोल्टाइक के बारे में है ये स्लाइड. इसमें हमारे फोटोवोल्टाइक सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो दिस इज PV पैनल, बैटरीज, इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर. ये सारे पार्ट्स हमारे सोलर PV सिस्टम में होते हैं. ठीक है, ये हमारे सोलर PV सिस्टम पे होते हैं. वहां डायग्राम कर लीजिए. जैसे हम वी कैन हैव दिस इज सोलर एरे. व्हाट इज सोलर एरे? show you that. Then this is the charge controller. What is the function of charge controller here? It is managing the voltage level. क्योंकि क्या होगा, सोलर रेडिएशन से जो हमें फोटोन मिलता है उसका रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज होती है. ठीक है, होती है ना कि नहीं होती? होती. कभी जब बारिश का मौसम है तो यू डोंट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी एंड इट इज डिफरेंट. So when it is different, this solar panel will give the output differently. ठीक है, तो उसके लिए हमें मैनेज करना है. अगर हमें डीसी लोड को हम डायरेक्टली करते हैं तो हमें एक चार्ज कंट्रोलर की बीच में जरूरत पड़ेगी जो हमको क्या देगा, it will give us a proper required output. Doing the solar energy charge to the battery bank. बैटरी बैंक क्या कर रहा है, बैटरी बैंक आपका स्टोरेज के लिए पर्पस सर्व हो रहा है. और बैटरी बैंक का जो आउटपुट है इट्स गोइंग टू इन्वर्टर एंड देन फाइनली इट कम्स टू द AC लोड. सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सोलर PV सिस्टम. ठीक है, सोलर PV सिस्टम में इस तरह के अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो हमें, ये बेसिक है, इतना तो हमें चाहिए ही. इसके बाद हम प्रेसिशन के लिए we can choose, we can decide upon what are the different types of batteries, कितना करना है हमको, कैसी यूज करनी है. that comes the next option. ठीक है, नेक्स्ट करिए. ये जो हम एरे की बात कर रहे हैं या सोलर PV की हम बात कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन. इट इज यूज्ड फॉर मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन. ठीक है, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन दोनों टाइप के ऑप्शंस हमको मिलते हैं. दोनों ही हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दोनों में कुछ ये रहता है कि आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो कम या ज्यादा मिलेगा, या अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी सोलर पैनल इजीली अवेलेबल है वी कैन यूज देम. प्लीज नेक्स्ट. या so this is the comparison between these solar panels. We have monocrystalline solar panel, we have polycrystalline solar panels, we have thin films, which is amorphous silicon solar panel, concentrated PV cell. ठीक है, इनके ये एफिशिएंसी का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट इतना दिया हुआ है. आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड PV सेल, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड PV सेल मतलब सोलर रेडिएशन what we are getting is concentrated at one junction or at one point. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी 41% मिल रही है, अदरवाइज 15%, 20%. दिस इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी we obtain from the solar panels. ठीक, तो दिस इज, हाँ आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाइए.
तो दिस इज द सोलर पैनल। प्लस को अगर हम माइनस में जोड़ते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इट इज व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन? इट इज अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, so we can have the solar panels and these are connected in series. When we connect it in series, then voltages, what will happen to the voltages and what will happen to the current? The current will remain same and voltages add up, है ना? The voltages will add up. तो टोटल यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं इधर आउटपुट में, तो हमें मिल रहा है 12 volts multiplied by 4, 48 volts and 5 amperes. 5 ampere is the current. The same current in series, the same value of current flows through the circuit. Next, this is parallel connection. पैरेलल कनेक्ट ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर हम पैनल्स या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दोनों में कुछ एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, दोनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से हमने किया, ये जो पार्ट है इसमें ये पैनल में बहुत सारे सेल्स होती है। ठीक है, तो दिस इज द सेल एंड दीज आर द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स हैव बीन कनेक्टेड इन series. It looks like this. Modules strings are connected in series, positive to negative, and then if it is array, strings are connected in parallel. These combination, इस पे भी हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच में। ये उसमें क्या होगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें 5 किलोवाट का एक सोलर प्लांट डिजाइन करना है। मैंने अभी देखा कि यहाँ आने के टाइम पे पेट्रोल पंप है, उस पे सोलर पैनल्स लगे हैं। आप लोगों ने सब है ना? हाँ, कॉलेज का ही है वो। अच्छा, तो वहां पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो सोलर पैनल्स हम अपने लोड के रिक्वायरमेंट के करते हैं। और लोड का कैलकुलेशन क्या है? जैसे हमने देखा कि 5 एम्पियर्स जो है वो रिक्वायरमेंट केस है। ठीक है, 5 एम्पियर्स अगर हमको चाहिए तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, I1, I2, I3, I4, I total is addition of these four current, it comes out to be about 4 amperes. तो जो भी हमारी करंट की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे अभी हमने देखा कि 1600 वॉट है, तो इसमें वोल्टेज और करंट कितना होगा? अगर 1600 वॉट है तो इसमें ये डीसी है सपोज, तो इसमें वोल्टेज और करंट कितना होगा? वोल्टेज होगा हमारा कितना होता है? यहाँ सॉकेट में कितना वोल्ट मिलता है? 230। तो सिंगल फेज का जो हमारा है वो हमें मिल रहा है 230। 5 into 200 will give us what? It will give us what? ठीक है, it will give us wattage। ठीक है, तो wattage में हम कितना ले रहे हैं? जैसे हमने उसको 200 मान लिया, 200 into 5 it is 1000 watts। ठीक है, तो 1000 watt तक का लोड हम इस सॉकेट में लगा सकते हैं। कोई भी हम अप्लायंस यूज करना चाहें, सपोज वो हमारे रूम में लगा है, हेयर ड्रायर यूज करना चाहते हैं, तो हेयर ड्रायर का कितना वोल्टेज है हमको चेक करना होगा। नहीं तो अकॉर्डिंगली जो पावर वाला सॉकेट है वो यूज करना पड़ेगा। उसमें कितना होता है पावर सॉकेट में? करंट 16 एम्पियर्स या 15 एम्पियर्स। ठीक है, इसमें भी 5 या 6 वाले भी आते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होता है। तो व्हेनेवर वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट वी नीड टू नो दीज थिंग्स कि कितना कैलकुलेशन हमें करना है। तो लोड कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, उस लोड के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिजाइन द सिस्टम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाइए। ये सीएसपी टेक्नोलॉजी है। अब हम फिर से थोड़ा सा थर्मल का देख रहे हैं। थर्मल में क्या है? ये इस तरह के डायग्राम्स हैं। ये जो डायग्राम्स हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ पैनल्स हैं, और ये जो डार्क लाइंस आप देख रहे हैं वो ट्यूब है। तो उस ट्यूब में वाटर फ्लो होता है, तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड हीट उस वाटर वाले पाइप पे जा रही है।
तो ठीक है, इस वाटर वाली पाइप पे जा रही है कॉन्सेंट्रेटेड हीट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल गेट हीटेड अप, इट विल गेट हीटेड अप। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट हम, ये पैराबोलिक डिश भी हम यूज कर सकते हैं, फिर हम एब्जॉर्बर ट्यूब एंड कॉन्सेंट्रेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ सनलाइट आ रही है, ये मिरर यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, और ये जो है इनको हम बोलते हैं हीलियोस्टैट्स, इनको हम बोलते हैं हीलियोस्टैट्स। तो सीएसपी जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में हम समझ रहे हैं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, और वो एक कॉन्सेंट्रेटेड जो स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल वाला जो डायग्राम है, इट इज वी कैन हैव कुकिंग, फॉर कुकिंग ऑफ फूड, इसमें हम फ्राई भी कर सकते हैं। अगर हम बॉक्स टाइप सोलर कुकर यूज करते हैं तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 70 डिग्रीज 80 डिग्रीज तक मिलता है। ठीक है, और अगर हम ये सेट का कॉन्सेंट्रेटेड टाइप सोलर कुकर यूज करते हैं, जिसमें हम भी पॉइंट पे हम अपना, तो हम तल भी सकते हैं, तलने वाला काम भी हम इसमें कर सकते हैं। द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 200, 150 to 200। ठीक है, सो दिस इज द options is available. So this is the option which we have for different cases. CSP है, direct normal irradiance है, measurement by heliometer. ये this is something new. There is a measuring instrument. अगर suppose हमें क्या क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर हम इस रूम की स्टडी कर रहे हैं फॉर इल्यूमिनेशन पर्पस, लोड पर्पस, तो लोड के साथ हमें इल्यूमिनेशन भी देखना होता है। तो इल्यूमिनेशन हम कौन से यूनिट में आएगा, हमारे पास एक लक्स मीटर होता है, लक्स मीटर गिव्स अस द वैल्यू इन लक्स। ठीक है, वो एक पैरामीटर होगा। अगर हम बाहर यूज कर रहे हैं कोई अप्लायंसेस, तो बाहर यूज कर रहे हैं तो हमें सोलर रेडिएशन का वैल्यू निकालना है, तो सोलर पावर मीटर होता है, और एक पाइरोमीटर इज अ लॉन्ग ट्यूब इंस्ट्रूमेंट और द appliance, it is a long tube appliance which is being used, वो वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है, उससे हम उसका इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। सो इट इज अ सोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट which can be used continuously. Principle, sunlight से heat, and we can have electricity also. How do we generate electricity? We are generating, PV में तो हम convert कर रहे हैं, ठीक है। How do we generate from thermal sources? We have got water, concentrator है, water है, तो उस water को हम heat up कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमने अगर heat up किया तो हमें क्या मिलेगा, steam. We will get the steam. We can run steam turbines. Then steam turbines are being converted to being given to the generator. ठीक है, तो जनरेटर से क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द फंक्शन ऑफ जनरेटर इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। अगर हम सोलर रेडिएशन के कंपोनेंट्स की बात करें, तो वी हैव डायरेक्ट रेडिएशन, वी हैव गॉट डिफ्यूज एंड वी हैव गॉट ग्लोबल रेडिएशन। ठीक है, वो जो इनिशियली हमने डायग्राम देखा था, सन्स रेज आ रही है, इट इज गेटिंग स्प्लिटेड अप इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम कैसे हैं उसको यूज कर सकते हैं, दैट विल बी देयर। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजी में जो है इतना 400 डिग्री तक का भी टेम्परेचर जाता है। ठीक है, ये हमने एप्लीकेशंस कुछ फोटोग्राफ्स फॉर्म में देखे। वी हैव फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। अगर आप सोलर वाटर हीटर लेने जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ट्यूब टाइप भी मिल रहा है, फ्लैट प्लेट भी मिलता है। ठीक है, और वो पानी जो गिर रहा है उसके बाद थर्मो साइफन फिर वापस मूव होगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली हम ऊपर से पानी डालते जाएंगे और नीचे से लेते जाएंगे, उस पानी को सर्कुलेट करके वापस हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो flat plate collectors, we have solar chimney. Solar chimney is used for the purposes of industries, households, different types of categories of the households.
ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं सोलर चलने। सोलर पॉन्ड भी जो है वो हीटिंग स्टोरेज की तरह से होता है। सोलर पॉन्ड भी जब वो थर्मल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। और जैसे ये वॉल्स है, तो इस वॉल्स में बीच में हम एट द जो सोलर का जो थर्मल एनर्जी है उसको स्टोर करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ CSPs डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। देन देयर इज सेंट्रल टावर, जो हीलियोस्टैट वाली ड्राइंग हमने बताई थी, वो जो है वो सेंट्रल टावर वाला ऑप्शन है जिसको हम यूज करते हैं। और पैराबोलिक डिश वाला जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड वो रहेगा। ठीक है, इट इज दिस। नेक्स्ट करिए, टेम्परेचर। Temperature is 400 degrees for parabolic trough collector. This is a actual installed parabolic collector. ठीक है, स्पेन में है, यूरोपियन कंट्रीज में काफी सोलर थर्मल एनर्जी यूज होती है। लाइन फोकसिंग, लाइन रिसीवर ट्यूब, वाटर कंज्यूमिंग, parabolic mirrors, parabola. You understand? Everyone understands what is a parabola. What is the shape of a parabola? It's something like this. There is an angle. We call it as parabola. ठीक है, देन पैराबोलिक मिरर्स भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। और हीट स्टोरेज फिजिबिलिटी एंड मोस्ट कमर्शियलाइज्ड ऑप्शन इज देयर फॉर द सेम। नेक्स्ट है ये वाला जो है वही सेंट्रल टावर वाला जो ऑप्शन है, हीलियोस्टैट्स लगे हैं। दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ, दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ, दैट वाज अ डायग्रामेटिक व्यू एंड दिस इज द एक्चुअल photograph, and this is also being popularly used for applications. अब ये सेलेक्ट करना है कि आप सोलर थर्मल करना चाहते हैं या आप सोलर पीवी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए, दिस इज पैराबोलिक कलेक्टर्स। ये इस टाइप की जो डिश है ये एक लातूर महाराष्ट्र में भी अवेलेबल है। लातूर महाराष्ट्र में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आपको मिल्क का प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूजफुल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट कर दीजिए, ये दिस इज अगेन वन टाइप। इसमें इस अरेंजमेंट में अगर आप देखना चाहें, देखिए आप यहाँ पे एक यहाँ पे बेस लेवल है और इधर आपका परपेंडिकुलर पैरेलल में यू हैव मेड द मेड अ पाइप जिसमें हीटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जो लाइंस दिखा रहे हैं वो सोलर रेडिएशन की दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ लीनियर फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर is known as linear Fresnel reflector. Next, ये सोलर स्ट्रीट लाइट की फोटोग्राफ ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइट। एडवांटेजेस में इसमें देख सकते हैं हम कि it requires much less maintenance, risk of accidents are minimized, non-pollutive, energy cost can be solved. And disadvantages, initial investment is higher and the risk of theft। अगर हम बाहर रखते हैं, क्योंकि हमें रखना ही पड़ेगा, हम बाहर पैनल को डैमेज कर देता है, कभी कोई बैटरी ले जाता है। सो दैट प्रिंसिपल्स हैव टू बी followed, then only we can have more popular use of solar energy. People should not break the solar panels, they should clean it properly, regular maintenance होना चाहिए। और बैटरीज जो है उसको भी एक प्रॉपर यूसेज और उसकी भी सर्विसिंग होती रहनी चाहिए रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट सोलर कुकर। सोलर कुकर में ये जो मैं बॉक्स टाइप बोल रही थी इस तरह से दिखता है। दिस इज पैनल कुकर एंड दिस इज पैराबोलिक टाइप ऑफ सोलर कुकर। तो जो हायर टेम्परेचर्स हैं हमें इन दोनों में हायर टेम्परेचर्स करते हैं। इसमें हमें बेसिकली मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं पहुंचता, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं पहुंचता, लेकिन हीटिंग पर्पस है या फिर कुछ हमें सेकना है कुछ सामान से, तो वी कैन यूज दैट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट सोलर वाटर हीटर के भी ये फोटोग्राफ्स हैं जिसमें पाइप टाइप ऑफ कलेक्टर हमने यूज किया है। अब इसमें हम देख सकते हैं ये कलेक्टर, इट कैन प्रोवाइड 200 to water at about 60 degree Celsius. ठीक है, this is a solar you use हाँ वो
water and water. This is solar desalination. क्या होता है? We are having shortage of water. Shortage of water है. तो हमें क्या करना है? समुद्र का पानी ample available. How much is the percentage of land and water on the earth? About 75% is water. हाँ. And only 20 to 25% is land. है ना? तो लैंड एरिया जो है वो काफी कम है और हमारे ओशियंस जो है वो सबसे ज्यादा पानी लेके बैठे. ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर हम सपोज सॉल्ट वाटर दिया है, ड्रिंकिंग वाटर इज लेस, व्हेन ड्रिंकिंग वाटर इज लेस सो वी हैव टू हैव सोलर, जो आपका समुद्र का पानी है, सॉल्टी वाटर, उसको हम ये डिसैलिनेट कर सकते हैं, मतलब हम उसका सॉल्ट कंटेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं. तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, सोलर स्टिल बोलते हैं इसको, एंड देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सोलर स्टिल. सोलर स्टिल के काफी सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं. तो सोलर रेडिएशन इज फॉलिंग ऑन द अपर क्रस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स. ये जो ऊपर का सरफेस है ये रेडिएशन है, और ये जो डॉट्स है ये जो वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेटेड ड्रॉपलेट्स जो है वो एक तरफ जाते जाते हैं, उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता, और इट इज बीइंग कलेक्टेड एंड यू कैन सी दैट इट इज बीइंग कलेक्टेड एट वन प्लेस. ठीक है, वाटर टैंक में कलेक्शन हो रहा है, तो वो स्लाइड होके यहाँ नीचे जो टैंक बना है उसमें इकट्ठे होते जाता है, उसमें टाइम लगता है. वो प्रोसेस इज नॉट फास्ट, दैट प्रोसेस इज नॉट फास्ट, इट इज अ बिट स्लो. ठीक है, तो इस तरह से ये हम सोलर डिस्टिल कर सकते हैं. वी आर these are the common methods, जैसे ये यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सोलर सेल टू पावर मेम्ब्रेन प्रोसेस. एडवांटेजेस क्या है? फ्री सोलर एनर्जी फॉर ऑपरेशन. ठीक है, सोलर डिस्टिल वाटर आप लेने जाते हो तो आपको पता है इट इज नॉट एन इजी ऑप्शन. ठीक है, इट इज नॉट फ्रीली ऑल्सो अवेलेबल. हम लोग गाड़ी की बैटरीज जो यूज करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा कॉमन पर्सन यूज करते हैं. ठीक है, तो वो वाले ऑप्शन हमको यहाँ पे करने रहेंगे. एंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट हैज गॉट लो मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं रहेगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेंगे. इसको मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये कुछ पॉलिसीज हैं जो पुरानी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए की गई है. सबसे पहली चीज तो ये है, पॉलिसीज पे हम आ जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमको एक्सप्लोर करना है. उसमें काफी सारी स्कीम्स कंटिन्यूसली आती जाती है. रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा ही उस पे अभी पिछले 20 सालों से तो टॉप पे ही रहा है, जिसमें हम जो गवर्नमेंट है it promotes the usage of renewable energy, especially the solar energy or the wind energy. ठीक है, दोनों ही चीजें यूज करना चाहते हैं. तो सोलर मिशन जो है वो 2010 से शुरू हुआ था, और इसके अलावा वो जो था इट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी क्लाइमेट चेंज. नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी क्लाइमेट चेंज, ये एक नया टॉपिक आ रहा है. इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज पे भी काफी सारा काम हो रहा है, उसमें यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज देयर. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस, हीट अप हो रहा है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को मैनेज करना है हमको, टेम्परेचर को मैनेज करना है, एमिशंस को रिड्यूस करना है. तो क्लाइमेट चेंज इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द emissions which is taking place. So it is also one of the policy of the government to manage or fulfill the climate change options. ठीक है, there are 3 phases to the mission. phase 2021 10 से लेके 12 तक, फिर 13 से 17 तक, फिर 17 से 22 तक. ठीक है, तो इस तरह से नेशनल सोलर मिशन का ही पार्ट रहा, जिसमें इस तरह की स्टडीज होती है. What you can do as a to find out what are the recent policies which is working from the
गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। करियर ऑप्शन मतलब अगर आप इस फील्ड में काम को क्या चीजें एक्सप्लोर करके क्या चीजों के बारे में अपडेटेड रहना रहेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट लिसन्ड अबाउट दिस? इसने नहीं सुना अभी तक, प्लीज रेज हैंड। इलेक्ट्रिसिटी आपने नहीं सुना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो एक बोलना चाहिए कि प्रमोट करने का एक लैंडमार्क है। इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जब आया तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन यूनिट्स हैं, जैसे थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, बायोमास है, रेन्यूएबल में है, ठीक है। रेन्यूएबल में सोलर है, विंड है। तो ये जनरेशन स्टेशंस हो गए। और जो आपका फिर आता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन लाइन अभी भी गवर्नमेंट के ही पास है ज्यादातर, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। स्टोरिंग के लिए ऑप्शन क्या है, बस या तो आप फ्लाईव्हील यूज करोगे या अल्ट्रा कैपेसिटर यूज करोगे, बट इट इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, व्हाइल आवर यूसेज इज फार सो मच, यूसेज इज टू मच, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको ब्रेकअप किया। जैसे जेनको दैट इज जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन को बनाया ट्रांसको दैट इज ट्रांसमिशन कंपनी, और डिस्को बनाया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। तो कंपनी मतलब कंपनी इज प्राइवेटाइजेशन which had started with this landmark of Electricity Act 2003, ठीक। नेक्स्ट कर दीजिए, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में ये इनिशिएट हुआ था। तो उसमें भी है जो यही सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। तो इस तरह के नेशनल एक्शन प्लान में यू कैन बी अ पार्टी। What you can do is you can have a cluster of the group of people working in this area. आप चाहें तो सोलर पे काम कर सकते हैं, विंड पे कर सकते हैं, सिर्फ ऑडिटिंग पे कर सकते हैं। तो ये these are the various topics which will guide you in different positions, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। Then comes generation based incentives for solar. Generation based incentives मतलब जैसे अगर हमने अभी बोलते हैं जीरो एनर्जी बिल्डिंग यूज करना। जीरो एनर्जी बिल्डिंग मतलब हम ग्रिड से कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अगर हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सोलर पैनल्स लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें लोड कैलकुलेट करना है। लोड कैलकुलेशन के बाद उसके हिसाब से we have to decide what will be the size of the solar plant, ठीक है। साइज ऑफ द सोलर प्लांट हमको डिसाइड करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसमें अगर कोई और ऑप्शन है, बायोमास अवेलेबल है, मतलब किचन वेस्ट से भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो अगर अवेलेबल है तो हम वो ऑप्शंस भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जैसे सोलर वाटर हीटर हमने यूज किया तो गीजर को बिल्कुल हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। कुकिंग के लिए हमने सोलर कुकर्स यूज किए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम चेंजेस करते हैं तो वी कैन मूव अहेड विद दिस इंसेंटिव्स, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल मिशन भी ऑलरेडी 2022 तक चलता ही रहा है, अभी भी एक्सपेंशन उसमें चालू है, ठीक है। तो इस तरह के मिशंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। बस नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आईसीस जो है, इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स है। तो जिस जिस भी हिसाब की डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, पोटेंशियल होगा, उस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज बेनिफिशियल
we have found that it is a free energy which is available. Only thing is initial capital cost has to be implemented. तो उसको आपको करना है, तो एनुअल जो कॉस्ट है उसी को हमको आगे बढ़ा के चलना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, और इस तरह की ये जो है इरेडा जो है ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये हर एक स्टेट के लिए डेवलपमेंट एजेंसीज जो है, एक ईसीबीसी और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, वो भी 2001 और उसी के आसपास की ही बात है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो आया उसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी चीजें, जैसे ऑडिट को कंपल्सरी कर दिया, ऑडिट को कंपल्सरी करके फिर उसमें वर्किंग शुरू कर दी, एक ऑडिटर की टीम होना चाहिए, एक उन्होंने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना दिया। पहले अगर हम ये एसी खरीदते थे तो हम कुछ नहीं देखते थे, हम देखते थे कि हमें लोड कितना लेना है, 1 टन लेना है, 1.5 लेना है, लेकिन अब हम क्या देखते हैं, स्टार रेटिंग है कि नहीं। अगर हम घर के लिए अप्लायंसेस लेते हैं तो वी हैव टू चेक whether there is star rating is there or not, दोनों चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार रेटिंग है कि नहीं, दैट्स एन इम्पोर्टेंट इशू, दैट इज गिवन बाय द बीई which is Bureau of Energy Efficiency. This Bureau of Energy Efficiency is also conducting examination for energy auditors and energy managers, ठीक है। तो उसमें फिर आपको कुछ बुक्स हैं उनको पढ़ना रहता है, उनको लेके आपको वो एग्जाम देना होता है, एंड दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, जॉइंट लिएबिलिटी ग्रुप फॉर ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन। ऑफ ग्रिड मतलब स्टैंड अलोन, ऑफ ग्रिड मतलब नो ग्रिड कनेक्शन, ओनली ऑफ ग्रिड केबल इज अवेलेबल फॉर स्टैंड अलोन केस, ठीक है। जैसे हम डीजल पावर प्लांट बनाते हैं, डीजल पावर प्लांट अगर हम बना रहे हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट बना रहे हैं, हम डीजल जनरेटर्स यूज करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी कोई ग्राउंड में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हमें ऑफ ग्रिड अरेंजमेंट्स करने होते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन के लिए CSR was introduced, CSR funds भी अवेलेबल है, कोई भी काम हम बिना फंड्स के नहीं कर सकते, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो वो हमें करना ही होगा, तो वो हमें करना ही होगा। नेक्स्ट कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कीजिए। कोई आप लोग का क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सोलर पीवी के थोड़ी सी और इंटीग्रेसीज पे जाती हूँ, ठीक है। रिव्यू हो गया, रिव्यू वाला खोलिए, इसमें सारे हम सारे फोटोग्राफ्स हैं काफी सारे, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। ये हमने अभी तक पढ़ा और ये उसी का एक रिवीजन है विद मोर ऑफ फोटोग्राफ्स, ठीक है। थ्योरी हमने समझी क्या क्या होती है, क्या चीज हम कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज गिविंग यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वेयर इट इज इंस्टॉल्ड एंड हाउ इट इज वर्किंग। नेक्स्ट करिए, जैसे हमने ये देखा कि सोलर फोटोवोल्टाइक, सोलर थर्मल है, पैराबोलिक ट्रफ है, सोलर डिश है, सोलर पावर टावर है, तो ये एनर्जी फ्रॉम सन का बेसिक यूसेज है जो हमें करना है, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टाइक है, सोलर थर्मल है। नेक्स्ट करिए, फोटोवोल्टाइक भी हमने समझा कि सोलर सेल है, कॉमनली नोन जो है वो सोलर सेल है, और एरे है और स्ट्रिंग्स है। नेक्स्ट, photons और particles, solar photovoltaic में क्या होता है, बेसिकली when photons strike a photovoltaic cell, they may be reflected, pass right through or absorbed, and only the absorbed photons provide energy to generate electricity. Photons मतलब हमें जो मिल रहा है सन से, वो क्या मिल रहा है, फोटॉन, ठीक है।
हमें जो सन से मिल रहा है दैट इज फोटोन। नेक्स्ट कर दीजिए। फिर दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली फोटोवोल्टाइक सेल इज अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको याद हो 11th 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एक डायोड की तरह अगर हम इसको सिमुलेट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, या तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम सिमुलेट करते हैं। अगर हम सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट मतलब कोई सॉफ्टवेयर में हम डालते हैं। अगर सपोज हम मैटलैब यूज कर रहे हैं, आई थिंक इन एवरी कॉलेजेस वी आर यूजिंग मैटलैब, ठीक है। तो मैटलैब अगर यूज करते हैं उसमें सिमुलेट यूज करते हैं, तो हम एक डायोड की तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक लोड लगा सकते हैं, रेजिस्टिव लोड लगाएंगे क्योंकि डायोड डीसी वाला ही फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट करें। ये इस तरह से सोलर सेल के कंपोनेंट होते हैं। एक बेस है, ये एमिटर है, ठीक है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है यहाँ पे, बस बार इस दीज आर दी बस बार्स एंड दीज आर दी लाइंस। ये इतनी मोटी नहीं दिखती, ये एक सेल का डायग्राम है। एक सेल जो हमने बताई थी छोटी सी, उस सेल का ये डायग्राम है जिसमें फिंगर्स से कलेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन goes to the bus bar and that bus bar can be connected to another cell. So number of cells will keep on increasing. इसका normally voltage level है 2 volts, 2 volt रहता है या 1 volt रहता है, ठीक है। 2 volts को अगर हमें 48 volt का पैनल बनाना है, 48 वोल्ट्स का पैनल आता है ज्यादा, ठीक है। तो अगर 2 वोल्ट एक में है, 48 वोल्ट, 24 सेल्स को हम सीरीज में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल्स जो है ये 1 वॉट, 3 वॉट, 5 वॉट से 75 वॉट साइजेस 150 में भी आता है। तो डिफरेंट साइजेस जो है वॉटेजेस के पीवी मॉड्यूल्स के वो इस तरह से वेरी करते हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ द पैनल, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स एंड एरेज। ये कंसेप्ट नेक्स्ट, जैसे अभी हमने देखा एक सेल का फोटो देखा, सेल ऐसा दिखता है और ये जो है ये बस है और ये जो लाइन है ये फिंगर्स है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फिंगर्स है और ये 2 लाइंस जो है एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्योंकि हम डीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस पार्ट है। नेक्स्ट करिए। तो ये एक सेल का इस तरह से एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। आप देखें यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होके जो लाइन जा रही है, जो सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है वो नेगेटिव पे जा रहा है। दैट मींस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस इज नोन एज मॉड्यूल। दिस वाज सेल, number of cells are then connected together make a module. Next, this is array. जैसे अब हमने ये इंटरनली तो सीरीज में हो गया, इस इंटरनल सीरीज कनेक्शन को अगर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना रहे, जैसे ये दोनों सीरीज में हैं पर ये 2 और 2 पैरेलल में हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ करंट भी इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इस लेवल पे भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का जो पार्ट है इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरे। दिस इज एन एरे। नेक्स्ट है ये पैनल्स इस तरह से आप मोनोक्रोमैटिक पॉलीटाइप जो आपको मिल रहे हैं कनेक्शंस, ये डार्क कलर है, ब्लू कलर है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द पैनल? रेज हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द पैनल एट ऑल? ये आप इस तरह के पैनल्स को देख चुके हैं? काफी जगह लगे होते हैं, काफी जगह लगे होते हैं, स्टडी नहीं किया लेकिन देख चुके हैं, है ना। तो दीज आर द मॉड्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। नेक्स्ट करिए। ये विलेजेस में भी यूज होना चाहिए सोलर पैनल्स। काफी ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट की भी निकली है जिसमें विलेजेस में सोलर पैनल्स लगा के उनको दिया गया है कि आपको डायरेक्टली यूज करें या फिर एक बैटरी भी लगाएं, तो आपको रात में भी जब लाइट नहीं आ रही, ग्रिड की लाइट अवेलेबल नहीं है, तो हम सोलर लाइट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोलर पीवी प्लांट इस तरह से दिखता है जिसमें सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे एरे बना स्ट्रिंग में सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। एक सिस्टम है जो पीवी पैनल को हम डीसी फैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइट को भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक आइसोलेशन में आपने एक मकान बनाया,
ठीक है, आपने आपके लेबरर्स के लिए या फिर किसी के लिए मकान बनाया, उसमें लाइट नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां तक ट्रांसमिशन टावर्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे? जैसे खेत पे बनाया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ये अरेंजमेंट बेस्ट अरेंजमेंट है जिसमें आप एक पैनल ले लो और कोई एक लाइट का अरेंजमेंट और एक फैन का अरेंजमेंट आप उसमें कर दो। तो दिस इज अ वेरी बेसिक डीसी फैन वाटर पंपिंग सिस्टम विच यू कैन यूज। नेक्स्ट, ये बिग बैटरी स्टोरेज। अगर बैटरी यूज करना है तो आपको एक चार्ज कंट्रोलर लाना पड़ेगा। चार्ज कंट्रोलर को डीसी लोड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंड बेसिक है, इसमें लोड आपका डीसी ही है, लोड जो भी होगा वो डीसी होगा और चार्ज कंट्रोलर आ जाएगा जो कि बैटरी को भी कर रहा है। तो वो वाला ऊपर वाला जो है वो सिर्फ आपका मॉर्निंग 7 to 6 वर्क कर रहा है और ये वाला जो बैटरी स्टोरेज है वो आपका होल 24 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, और ये बहुत एसी और डीसी लोड अगर हम कर रहे हैं तो डीसी टू एसी कन्वर्टर या फिर जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर की जरूरत हमको पड़ेगी। देयर विल बी अ चार्ज कंट्रोलर बैटरी, a DC to AC converter which is giving to AC load and DC loads also। ठीक है, दोनों ही लोड्स के लिए करते हैं। इन्वर्टर की एफिशिएंसी को हम मान के चलते हैं 90 से 95% होगी। ठीक है, नेक्स्ट करिए। Systems connected with grid generator, backup or additional energy source can be used in a PV system। ठीक है, ये थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें यूटिलिटी ग्रिड को भी पावर जा रही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब जब हम ग्रिड को दे रहे हैं तो हम अपने लोड को नहीं करते, लेकिन जो भी एक्सेस पावर हम जनरेट कर रहे हैं वो हम यूटिलिटी ग्रिड को दे सकते हैं। उसमें भी एक जैसे 2003 जब आया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसके बाद फिर क्या आया, इसमें ये आया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको ग्रिड से कनेक्ट करना है तो आप आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो उसका चार्ज कितना होगा। टैरिफ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। वहां से हम ले रहे हैं वो तो फिक्स है, वो फिक्स है, लेकिन हमारे यहाँ से जो सोलर पैनल लगे हैं उसको हम ग्रिड को दे रहे हैं, तो हाउ वी विल चार्ज दैट। ठीक है, तो हम पीक आवर्स का भी ध्यान रखते हैं, लेस ऑफ लोड का भी ध्यान रखते हैं, लोड फैक्टर को भी हम देखते हैं पूरा, और उसके हिसाब से एक गवर्निंग एजेंसी है जो इसको आपको डिसाइड करके देती है। तो ये लाइसेंसेस होते हैं, है ना। तो आपको रेगुलेटरी कमीशन होता है, आपका एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो रेगुलेटरी कमीशन का ये वर्क होता है कि वो आपको ये डिफरेंट चीजें जो हैं, जो ग्रिड में कनेक्शन के रूल्स हैं, रूलिंग्स आपको देती है। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ न्यू एजेंसी व्हिच हैज पॉप्ड इन। नेक्स्ट, पीवी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने ये देखा सोलर होम्स, कमर्शियल मैच्योरिटी और काफी सारी अब आजकल पिछले 20 सालों से काफी डेवलपमेंट हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी का मैं जब क्लास लेती हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं शुरू की 2 क्लासेस में यही कहती हूँ कि आप तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी में या रिन्यूएबल एनर्जी में कितना चेंज आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल में। और 80s और 90s में तो रिन्यूएबल एनर्जी था भी नहीं। 2000 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज काफी बढ़ता गया, काफी ज्यादा बढ़ता गया। ठीक है, तो इट इज दैट। फिर ये एप्लीकेशन जो है, जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ दिन में चलते हैं, इवनिंग आवर्स खाली रहते हैं, तो उसमें सोलर पीवी का यूज बहुत बेनिफिशियल है, उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में हमको 24 आवर्स चाहिए, तो एक बैटरी बैंक होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वाटर सप्लाई है, तो स्ट्रीट लाइट्स हैं तो वो हमें सिर्फ रात में चाहिए, तो वहां पे डस्ट टू डॉन का अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम स्ट्रीट लाइट को यूज करते हैं। देन वी हैव वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई भी हम पूरा सीएसपी पे यूज करते हैं। वाटर सप्लाई वाला जो पार्ट है हम उसमें थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। एग्रीकल्चर इज यूज फॉर, वी वांट इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी हम ऑफ टाइम में अगर हमें खेतों में पानी डालना है तो जरूरी नहीं है कि हम दोपहर के वक्त जब ज्यादा लोड है तब हम करें, हम ऑफ पीक आवर्स में भी कर सकते हैं। ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ इसको बोलते हैं डिमांड साइड लोड मैनेजमेंट।
डिमांड साइड जैसा भी डिमांड होगा, रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Normally, this was the range, keeps on moving, typical cost of PV system. Initial cost जो है वर्कआउट करते हैं, अगर हम 1 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो हमें कितना खर्चा हो रहा है। इनिशियली 4 लाख तक होता था, फिर हाफ हो गया, फिर और रिड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का उसका जो कॉस्टिंग है वो भी काफी। नेक्स्ट, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में हम इसमें जो समझा, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं उसकी, और हीट ट्रांसफर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमने अभी काफी देखे। नेक्स्ट करिए, ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्ट रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज यूजफुल फॉर द प्रोसेस। क्या होता है कि आपने एक पैनल लिया, पैनल पे आपने किया, क्या हम उसमें शैडो पड़ना कर सकते हैं? नहीं, शैडोज इज अ प्रॉब्लम। We cannot allow the shadows to fall on the panels or the solar application, solar thermal application. तो हमको जो उसकी माउंटिंग प्लेस है उसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ करना है। रिसीवर टाइप्स, ट्यूब रिसीवर है, स्टर्लिंग इंजन है, जो हमने वो हीलियोस्टैट्स देखे, वो रिसीवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीवर उधर वहां पे पहुंचना चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेटर हमको यूज करना है। पैराबोलिक हमने देखा, फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का डिस्क टाइप देखा, फिर हमने एक टावर टाइप का भी देखा। तो दीज अरेंजमेंट्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर द रिसीवर टाइप्स। नेक्स्ट, पैराबोलिक टर्फ डिश, सोलर पावर टैंक, एक फर्नेस, सोलर फर्नेस में तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी टेम्परेचर मिलता है, तो दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर। तो उसको अगर हमें जैसे सपोज इंडस्ट्री में यूज करना है तो वो भी हम सोलर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैराबोलिक ट्रफ। नेक्स्ट, ये दिस इज द पैराबोलिक ट्रफ। ठीक है, ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ट्रैकिंग क्यों चाहिए हमको? ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग मतलब सोलर लाइट है, हमें उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है। ठीक है, अगर वो 90 डिग्रीज नहीं मिल रहा है हमको, वी हैव टू मूव इट ऑन एंड जस्ट चेंज द ट्रैकिंग अरेंजमेंट। ये अब उसका ये एक्चुअली डायग्राम है, ये स्पेन का है ये। नेक्स्ट, ये भी एक पैराबोलिक ट्रफ का मॉडल है, कैलिफोर्निया का है ये पिक्चर, दिस इज इंस्टॉल्ड इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, सोलर डिश। नेक्स्ट, ये इस तरह की डिश वाला अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी मिलेगी हमको, जैसे ये स्टर्लिंग इंजन बोलते हैं। और नेक्स्ट कीजिए, ये इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। उसमें मिरर्स जो लगे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मिरर्स, ये लातूर का एक फोटो है, इसमें ये अलग अलग शेप्स के मिरर लगे हुए हैं। तो मिरर का भी डिजाइनिंग होता है। मिरर का डिजाइनिंग कैसे होगा कि इट शुड फोकस एट वन पॉइंट, फोकल पॉइंट पे वो आना चाहिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो वो कहाँ होगा ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये शेडी का है, जो कुकिंग है वहाँ पर सोलर बेस्ड कुकिंग होती है, चालू से हो रही है। तो यहाँ छत पे जो है सोलर कुकर्स के कॉन्सेंट्रेटर्स लगे हुए हैं, और वो उसकी एक एनर्जी हम नीचे किचन में लेके जा रहे हैं। और वी आर 1000 पीपल का खाना। सोलर पावर टावर, सोलर और हीलियोस्टैट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन हीलियोस्टैट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर सोलर पावर टावर। ठीक है, नेक्स्ट, ये इस तरह का डायग्राम होता है। तो इंडिविजुअल डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। रोटेटिंग मिरर्स आर टू फोकस द सनलाइट onto the receiver panel. नेक्स्ट करिए, दिस इज द रिसीवर टावर है, हीलियोस्टैट्स है, इस तरह का डायग्राम है। एरोज जो है वो हमें सनलाइट का डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन भी बता रहे हैं। हम चाहें तो उसका डायरेक्शन ये इंक्लाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हीलियोस्टैट्स लगे, पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे लगे, इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सोलर। ठीक है, अगर हमें सोलर पीवी लगाना है उसका डायरेक्शन कौन से उसमें होगा? साउथ। बाय साउथ नहीं, बिकॉज सन इज मूविंग tilted towards the south।
ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो है साउथ से मिलती है, तो हमें जो इंक्लिनेशन लगाना है टुवर्ड्स द साउथ, साउथ में ही लगाना है, ठीक है। और वो एंगल हमें क्या लेना है, दैट इज बेसिकली द लैटिट्यूड एंगल ऑफ अ प्लेस। कोई भी जगह का अगर हम भोपाल में कर रहे हैं या अगर हम कलकत्ता में कर रहे हैं तो क्या इंक्लिनेशन एंगल सेम रहेगा? नहीं, वो सेम नहीं रहेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द सन्स पोर्शन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें इंक्लिनेशन एंगल को करना है जो कि लैटिट्यूड पे होता है। सेंट्रल टावर हो गया। फिर नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस एज आई टोल्ड यू, नेक्स्ट कर दीजिए, फोटो देखते हैं उसकी। ये तो अरेंजमेंट होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटिंग मिरर होते हैं और हीलियोस्टैट्स होते हैं, दो टाइप से आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट करिए। तो ये इस तरह से सोलर फर्नेस का डायग्राम है, ये फ्रांस में अवेलेबल है। दिस इज फोटोग्राफ ऑफ सोलर फर्नेस। नेक्स्ट कीजिए। यूजेस ऑफ सीएसपी पोस्ट फॉसिल फ्यूल एरिया। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? अभी तक हमने देखा क्लाइमेट चेंज आया था। फॉसिल फ्यूल क्या है? जो कोल है, थर्मल जो रिजर्व्स है, नेचुरल गैस, ये सब जो चीजें हैं जिसको हम देख करके निकालते हैं, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर डिक्रीजिंग, हम अपने टाइम से भी देख रहे हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि डीजल के प्राइसेस या पेट्रोल के प्राइसेस कितने शूट अप हुए हैं। क्यों हुए हैं? बिकॉज अवेलेबिलिटी इज नॉट मोर, इट इज लेस अवेलेबल, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसको आगे, हमें फॉसिल फ्यूल्स को जो है रिप्लेस करना जरूरी हो गया। हालांकि हम कह रहे हैं कि कोल का एप्लीकेशन उतना कम नहीं हुआ। इंडिया में जो हमें कोल मिलता है, देयर आर कोल माइंस, इंडिया में जो हमें कोल मिलता है वो कैसा है? वो थोड़ा सा उसको क्लीन करना जरूरी है, तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसको करना पड़ेगा। तो वो भी हमारा एक टाइप का कैरियर ऑप्शन है जिसमें हमें सोर्स की हम बात करते हैं। तो कोल अवेलेबिलिटी, बिट्यूमिनस कोल है, तो उसका जो वैल्यू है, जितना हमें आउटपुट मिल रहा है, एमिशंस हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज दी डायग्राम्स। इसके बाद मैंने एक और स्लाइड आप लोग के लिए बनाई है, वो है पीवी सिस्ट के बारे में और कुछ केस स्टडी, कि हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर में इसकी स्टडी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इफ द पीपल वांट टू हैव ब्रेक और वी शुड कंटिन्यू, वी शुड कंटिन्यू करें। हाँ, एक मिनट, जो नेक्स्ट है ना वो खोल देगा। सोलर सोलर डिजाइन ओपन कीजिए उसको। हाँ हाँ हाँ, एनर्जी। हाँ, so डिजाइन डिजाइन सोलर पीवी सिस्टम डिजाइन, नीचे नीचे। हाँ ये पीवी, हाँ हाँ ये। इसमें मैं आप लोग को जो बताना चाहती हूँ वो है, दिस इज द सॉफ्टवेयर पीवी सिस्ट, दिस इज द सॉफ्टवेयर पीवी सिस्ट, ठीक है। तो पीवी सिस्ट में हम इसकी सिमुलेशन कर सकते हैं सोलर पीवी सिस्टम। वी हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है सोलर में, सोलर थर्मल होता है, सोलर पीवी होते हैं, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। फिर अगर हम चाहें तो सोलर पीवी सिस्टम को देख के, जैसा अभी मैंने आपको सेल्स एंगल के बारे में बताया, इसको हम पूरा स्टडी कर सकते हैं। पैनल्स जो हम ले रहे हैं, हम कौन से टाइप का पैनल ले रहे हैं, आजकल पेरोस्काइट और बाइफेशियल पैनल्स भी आने लगे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमको स्टडी करना पड़ता है इंटीग्रेटली, हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करें। हाँ, सोलर ज्योमेट्री। तो सबसे पहली चीज जो हमें सोलर में पता होना चाहिए वो है सोलर ज्योमेट्री। उसके बाद रिव्यू, फिर डिजाइन और पीवी सिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट करिए। ये जो डायरेक्शन है, जैसा कि हमने बोला कि सन है, सन के आसपास अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे जो है सॉलिस्टिस, ये इक्विनॉक्सेस होते हैं और सॉलिस्टिस होते हैं, ये कुछ डेट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या वेरिएशन होता है इसमें? ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जो सर्कल बना हुआ है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्कल, इट्स एलिप्टिकल, ठीक है। सन से अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा? ठंड मिलेगी। सन से अगर अर्थ का डिस्टेंस कम होता है
तो ठंड है और नहीं तो गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर सॉलिस्टाइस था, है आने वाला है जो 21-22 दिसंबर। ये कौन सा सॉलिस्टाइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको कैलेंडर में हम क्या बोलते हैं, दिस इज विंटर सॉलिस्टाइस, दिस इज बेसिकली विंटर सॉलिस्टाइस। और उसी के अपोजिट में जून में पड़ता है 21-22 जून, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टाइस। बेसिकली क्या होता है कि जो सन की लाइट है इतनी आयरॉनिकली इतनी अच्छी है, मतलब हम क्या बताएं, एक इक्वेटर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर वाला कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो है हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में है वो है कैप्रिकॉर्न। क्या इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में टिल्ट एंगल या फिर ओरिएंटेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। क्यों होगा डिफरेंट? डिफरेंट होगा क्योंकि वो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस कर रहे हैं, वो लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। वो सदर्न पोल के ज्यादा पास है, हम नॉर्दर्न पोल के पास में, ठीक है। तो और जो सन का जो रेडिएशंस है वो इतना इंटरेस्टिंगली ऐसा है कि ये मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जाती सन सीधे परपेंडिकुलर, उसके बाद फिर से इक्वेटर पे आती है और उसके बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाती है और फिर वापस रिटर्न बैक होती है। तो ये 4 डेट्स जो दी हुई हैं, 4 डेट्स ऑफ 1 ईयर, ये पूरा इन्हीं डेट से मैनेज होता है, ठीक है। सोलर जून वाला जो है समर सॉलिस्टाइस, दैट मींस समर सॉलिस्टाइस में कहाँ पर आएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है, और दिसंबर में ठंड होती है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही होगी, गर्मी की ठंड? अभी यहाँ ठंडी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, गर्मी। दैट यू कैन चेक वेरी वेल, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट होता है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे ये जो डेट्स हैं ये हमको समझ में आना चाहिए, और इसी के पर बेस हमें सोलर ज्योमेट्री जब हम करते हैं तो इसी पोजीशनिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जैसे ये हुआ, ये सनरेज आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। यहाँ समर है और यहाँ विंटर है, ठीक। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो एंगल है 23.45 डिग्री का, अर्थ भी पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। और सन्स रेज इस तरह से फॉल कर रही है। तो सन्स रे एज आई टोल्ड यू इट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्विनॉक्सेस है, इक्विनॉक्सेस कब आएंगे, जब डे और नाइट बराबर होता है, जब डे और नाइट बराबर होता है। 21 दिसंबर से डे और नाइट का कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होंगी, ठीक है। दिसंबर में जब सॉलिस्टाइस आ रही है तो दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होगी, ठीक है। और ऐसा ही अपोजिट, जब दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी, कम होगा समर सॉलिस्टाइस में, समर सॉलिस्टाइस, ठीक है। तो समर सॉलिस्टाइस कब आ रहा है, हाँ दिसंबर, हर 3 महीने बाद, जैसे 12 महीने हैं, हर 3 महीने के बाद हमको अलग अलग वैल्यूज मिलती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए, सोलर एंगल्स टू सन पोजीशन इन द स्काई, सरफेस सन एंगल्स। ये आप लोगों ने, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, जब सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डिक्लिनेशन एंगल होता है, आवर एंगल होता है, सोलर ऑल्टीट्यूड होता है, जेनिथ एंगल होता है, एजीमुथ एंगल होता है, ठीक है। और इसी तरह से सरफेस सोलर एंगल्स होते हैं। तो these are the basic angles of the geometry of solar energy, solar energy we are receiving, ठीक है। Next, and this is again that diagram, properly it has been made। उसमें ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये टिल्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ एक्सिस है, नॉर्थ साउथ एक्सिस है, दिस इज टिल्टेड, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये डिक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर लाइन, एंड होना कहाँ चाहिए था, यहाँ, तो यहाँ नहीं है, से थोड़ा सा शिफ्टेड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डिक्लिनेशन एंगल। तो इसी तरह से डिफरेंट एंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये डिक्लिनेशन एंगल का डायग्राम है। तो यहाँ पे ये इक्विनॉक्सेस की डिटेल्स भी दी हुई है,
ठीक है। मार्च 22 मतलब इक्विनॉक्स, डेक्लिनेशन एंगल इज 0, मार्च में 0 है। दिसंबर 22 में -23 है। सितंबर 23 में डेक्लिनेशन इज 0। तो ये जो जब जब 0 और ये है, इसका मतलब सनलाइट कहाँ फॉल कर रही है? इक्वेटर पे। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ फॉल कर रही है? इक्वेटर पे। ठीक है। और अगर समर दिसंबर है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई कर रही है। ठीक है। और ये जब जून 21 है, जब ये समर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस हमको दिखाई देते हैं अलग अलग मंथ्स ऑफ द ईयर पे। नेक्स्ट कर दीजिए। द अलग और बैक कीजिए। हाँ, तो ये इस तरह से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिक्स है। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। इसकी काफी सारी बुक्स हैं जिसमें ज्योमेट्री मिलती है। तो ये ज्योमेट्री जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है व्हेन वी आर मेकिंग द कैलकुलेशंस और द theory for that sun energy you can say। ठीक है। जेनिथ एंगल हो गया, एजीमुथ एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया, एजीमुथ एंगल गामा हो गया। दीज आर द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक। इसको डिटेल में मैं आपसे बनवा नहीं रही हूँ, बट इट इज देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड। इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन लगता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी में लगता है, वैसे ही सोलर ज्योमेट्री में भी बहुत कैलकुलेशन लगता है। नेक्स्ट करिए। एंड ओवरव्यू। ठीक है। विजिबल, जैसे मैंने बताया आपको, विजिबल और इंफ्रारेड। विजिबल जो है सोलर पीवी के लिए यूज होती है, इंफ्रारेड जो है सोलर थर्मल के लिए यूज होती है। ठीक है। जो वेवलेंथ है, विजिबल वेवलेंथ है, हमें क्या दिखता है? हमें क्या इंफ्रारेड रेज वाले रूम में दिखता है कुछ, या फिर अल्ट्रावायलेट में क्या हमें दिखता है? नहीं, हमें विजिबल लाइट वाला रेंज दिखता है। ठीक है। तो इट इज रिलेटेड विद आवर आईज आल्सो। हमारे ह्यूमन बॉडी में वो आई से रिलेटेड है, और वैसे अगर हम देखें तो ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है। सोलर पीवी systems that convert visible spectrum of sunlight directly into DC electricity. PV modules are exposed to sunlight, they generate direct current, and inverter then converts DC into alternating current. It can feed into AC distribution boards without affecting the quality of power supply. ठीक। तो ये सोलर फोटोवोल्टाइक्स का ये ओवरव्यू है विद कैलकुलेशन विद द थ्योरी पार्ट। जो बेसिक हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा वो क्या देखा कि सोलर थर्मल है और पीवी है, लेकिन उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, उसको हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, वो दीज आर गिवन इन दिस। जब हम पीएचडी कराते हैं या करते हैं तो उसमें हमें ज्योमेट्री डालनी पड़ती है। पर अगर हम ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो हमें बस उनको बेसिक्स तक ही पढ़ाते हैं, उसका करते हैं। अगर हम पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जब वो प्रोजेक्ट करते हैं तब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे तक उस सब्जेक्ट को लेके जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सोलर एनर्जी को सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो एरियाज आर वेरी मच, देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन वर्क ऑन। द ओनली थिंग इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और व्हाट इज योर टारगेट फॉर द सेम। ठीक है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, ग्रिड है, डीसी सोलर पैनल से मिल रहा है, बैटरी है। इसको भी एक तरीके से हाइब्रिड ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोर्स क्या क्या है, सोलर एनर्जी भी है और बैटरी भी अपने आप में एक सोर्स है, बैटरी भी अपने आप में एक सोर्स है। तो इसलिए हम इसको हाइब्रिड एनर्जी बोलते हैं। और ये जो होम अप्लायंसेस घर है, घर में भी हम सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, grid connected solar PV and off grid systems. So this is a diagrammatic view. Solar PV modules आप छत पे ऐसे, अगर आपके पास इंक्लाइन छत है तो सीधे लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल छत है तो आप विद पैनल्स मतलब विद स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। स्टैंड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। उस तरह से अरेंज करके आप अपने इलेक्ट्रिक नेटवर्क में उसको डाल सकते हैं थ्रू एन इन्वर्टर। ठीक। When inverter you can use this system.
This is the charge controller, DC load, PV array, how they are being used. These are the other diagrammatic representation. Next, करिए. Grid connected system. Building has two parallel power supplies from solar PV from power grid. ठीक, दोनों ही हमने देखा, सोलर पीवी से भी हम ले सकते हैं और पावर ग्रिड से भी ले सकते हैं. लोड कनेक्टेड दोनों के लिए यूज होगा. ये जो है बैटरीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम. बैटरी जिसमें लगेगी उसी में हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट यूज करने के लिए और बाकी हाइब्रिड डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो इट इज हाउ वी कैन यूज इट, ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम्स. नेक्स्ट करें. ऑन ग्रिड के लिए ये अरेंजमेंट और ये ब्लॉक डायग्राम है. डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है. डिस्ट्रीब्यूशन पैनल इज एन इम्पोर्टेंट इशू. जैसे अगर हम लाइटिंग करते हैं, हम वायरिंग कर रहे हैं, सपोज हमारे घर में 4 रूम्स हैं, तो चारों रूम्स की वायरिंग हम कैसे करेंगे? सीरीज में करेंगे कि पैरेलल में करेंगे? पैरेलल में. क्यों करेंगे पैरेलल में? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? पैरेलल में करेंगे तो क्यों? अगर हम सीरीज में करेंगे तो वोल्टेजेस जो है वो कम होते जाएंगे. ठीक है, वोल्टेजेस जो है वो ड्रॉप होते जाएंगे, तो हमें जहाँ चाहिए वहाँ प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा. ठीक है, तो लो वोल्टेज के कारण फ्लिकरिंग आपने ट्यूबलाइट्स में देखी होगी. तो लो वोल्टेज के कारण जो फ्लिकरिंग है उस चीज को भी अवॉइड करना है. हमें प्रॉपर वोल्टेज लेवल हर एक अप्लायंस में चाहिए, इसलिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम. ऑफ ग्रिड सिस्टम्स रिचार्जेबल बैटरीज पे हम यूज कर सकते हैं. लेड एसिड बैटरी काफी ज्यादा यूज होती है, वी कैन यूज दैट आल्सो. इट गिव्स टोटल ग्रिड इंडिपेंडेंसी. इट इज कॉस्टलियर देन ऑन ग्रिड पीवी systems. It is more costly than the on grid systems. Next है this is charge controller. ऑफ ग्रिड सिस्टम का कंपोनेंट्स हैं, डीसी लोड है और एसी लोड है. दिस इज डिफरेंट अरेंजमेंट. जैसे हम हमारे पास दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो उसके आंसर के हिसाब से कौन सा ब्लॉक डायग्राम ज्यादा सुटेबल होगा ये हमको चूज करना है. बट दीज आर दी ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. ठीक है, नेक्स्ट करिए. पीवी सिस्टम डिजाइन. पीवी सिस्टम डिजाइन में हमको क्या क्या करना पड़ता है? स्टैंडअलोन पीवी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है? वी हैव टू डू द प्लानिंग, साइट सर्वे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. देन असेसमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड लोड. देन असेसमेंट ऑफ सोलर रिसोर्स अवेलेबिलिटी. सिस्टम कंसेप्ट डेवलपमेंट. साइजिंग ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ द पीवी सिस्टम्स. साइजिंग करना पड़ेगा. सिस्टम कंसेप्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा. सिलेक्शन ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पीवी सिस्टम्स. पीवी सिस्टम्स में मेन कंपोनेंट्स मतलब हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं सोलर पैनल के, तो हमें कौन सा वाला चूज करना है और कितना वोल्टेज और वॉटेज का रखना है, ये हमारा डिजाइन में पार्ट आएगा. नेक्स्ट, PV array output depends on the geographical locations and timing. Selection of site with consideration of nearby high-rise object is necessary. अब इसमें ओरिएंटेशन वाला जो पार्ट है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसपे हमको ध्यान देना पड़ता है. ओरिएंटेशन इज एन इम्पोर्टेंट इशू. कई बार क्या होता है कि हमारे पास हमने नया घर लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उस घर में अरेंजमेंट हमारे ऐसे हो जिसमें हम मैक्सिमम यूज करें सनलाइट का. तो फिर लेकिन हमें वैसे घर मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उसी में ऑप्शन ढूंढेंगे. मतलब हमें साउथ साइड की तरफ फेस कराना है ओरिएंटेशन. हमारे पास छत में वो अवेलेबल है या नहीं, तो उस हिसाब से ये वाला जो साइड ओरिएंटेशन वाला पार्ट है. अगर हम नया मकान खरीदते हैं तो हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से लेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. ओके, okay. Then we have total unshaded area of the roof. अब यहाँ पे जो टर्म आया है वो है अनशेडेड. हमारे यहाँ सेंटर एनएचसी सेंटर में जहाँ जो बिल्डिंग है उसके बीच में एक बड़ा सा कोर्टयार्ड है. उस कोर्टयार्ड में हमने सोलर पैनल्स 5 किलोवाट के लगा रखे हैं. उसके आसपास में कुछ
लैंडस्केपिंग भी है, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग का क्या होता है, और सनलाइट फ्रंट में भी बिल्डिंग है, बैक में भी, चारों डायरेक्शन में बिल्डिंग बनी हुई है, तो काफी कम टाइम के लिए हमारा सोलर पैनल को इलेक्ट्रिक सनलाइट मिल रहा है। पर हम भी देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम के लिए मिलना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है कि छत पे शिफ्ट कर दें, और वो भी साउथ साइड वाले छत उस पे एरिया पे, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पेड़ की स्टैंड उतना ही रखे पेड़ को डायरेक्शन, सो दैट शैडो डजंट ड्रॉप, ठीक है। तो एक शैडो एनालिसिस पे भी अगर आप पेपर्स ढूंढेंगे इन सोलर एनर्जी की डिजाइन पे, तो शैडो एनालिसिस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उस पर भी काम होता है। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ रूफ, रूफ कैसी है, अगर टिल्टेड रूफ है, स्ट्रेट है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। देन पॉसिबल रूट्स फॉर केबल्स, बैटरीज, इन्वर्टर, लोकेशन, कहाँ पे रखना है, मतलब हमें बैटरी बैंक अगर बनाना है तो ग्राउंड फ्लोर पे बनाना है, ताकि हमारी सारी वायरिंग प्रॉपरली पूरे हाउस होल्ड में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। सोलर पाथ फाइंडर कैन बी यूज्ड टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ सीजनल शेडिंग प्रॉब्लम। Then there are parameters like incident solar radiation, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। These are solar radiation है, ambient temperature है, wind velocity है, to be collected। इसमें बहुत सारी चीजों में मैं आपको एक केस स्टडी के बाद बताऊंगी। केस चूज की अलग अलग, वो अलग कॉम्पोजिट कैविटी जोन, ठीक है। दिल्ली भी कॉम्पोजिट में आता है, शिमला में जाओगे तो कोल्ड एंड सनी हो गया, ठीक है। अगर साउथ की तरफ कोस्टल एरियाज में जाओगे तो हॉट एंड ह्यूमिड हो गया, ह्यूमिडिटी भी काफी होती है और हॉट भी होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सिटीज में हमने कैलकुलेशन और स्टडी किया है, जिससे हमें आगे काफी ज्यादा फर्क पता चला, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट का ये चार्ट है, ये चार्ट है, तो मैंने आप लोगों से छोटी सी एक एक्सरसाइज कराई, उसी को हमको टेबल फॉर्म में करना है। किस तरह से करना है, पहले तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस किस को हमको सोलर एनर्जी से पावर करना है, वो कैलकुलेशन हमें करना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं, टीवी होता है, रेफ्रिजरेटर है, लाइट है, कितने आवर्स के लिए है, पावर कंजम्पशन कितना है, टीवी कितने हैं, लाइट्स कितनी है, ऑल दो थिंग्स। So this chart has to be made which gives you the calculation of the load. Energy requirement आपको जो है वो ये बताना है। Specify the number of hours per day each item will be used. That is again an important which is known as energy. So power into time is your energy which has to be managed. ठीक है, तो वो दोनों चीजें हमको पता होना चाहिए। Total wattage of the appliances, sum of the column C. ये वोल्टेजेस टोटल कर रहा है कॉलम सी, ठीक है। देन आपका सम ऑफ द कॉलम एच, एच वाला जो कॉलम है मैक्सिमम सर्ज डिमांड कितनी है, वोल्ट एम्पियर्स में निकलता है। वो इस तरह से जो भी हम डेटा ले रहे हैं, जो जो पॉसिबल है, तो हमको इस टेबुलर फॉर्म में डाल के उसके मेन कैलकुलेशंस करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सोलर एनर्जी रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी रिसोर्सेज में हमें क्या है, एवरेज एनुअल ग्लोबल रेडिएशन कितना है, डेली ग्लोबल कितना है, और नंबर ऑफ सनशाइन डेज कितने हैं पर ईयर। क्या हमें 12 आवर्स में सारे दिन लाइट मिलेगी, सनलाइट? नहीं, नहीं मिलेगी, ठीक है। काफी सारे दिन होंगे जिसमें नहीं, 365 डेज में से कितने डेज तक इफेक्टिवली सनलाइट आपको प्रॉपर मिलेगी जिसमें आप यूज कर सकते हो, हाउ मेनी डेज? एटलीस्ट आपका मान के चलो 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स तो वेस्ट होता ही है, ठीक है। 12 मंथ्स है हमारे पास, लेकिन अबाउट 9 मंथ्स तक का ही डेटा हम यूज कर सकते हैं, बल्कि और 4 महीने कह सकते हो, क्योंकि ठंड में और बारिश में दोनों में क्लाउडी वेदर होगा जो हमें उतना लाइट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइजिंग ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पीवी सिस्टम। सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गया, देन चार्ज कंट्रोलर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये उनकी फोटोग्राफ्स है, हाउ डू दे लुक, और ये these are the accessories, these are the accessories, and we have got the storage batteries and the load also. So these are the photographs of the components which we will be using for the
डिजाइन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कर दिए। टोटल पावर ऑफ द अप्लायंसेस, मैक्सिमम डिमांड, सर्ज डिमांड, असेसमेंट टेबल जो अभी हमने देखी उसमें से हमको ये निकालना है। और यहाँ पे कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ द इन्वर्टर जो है वो 1.2 टाइम्स रखना है, मतलब 20% ज्यादा लेना है। अगर 5 किलोवाट है तो 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, कितना केवी आएगा, 20% हमको ज्यादा की साइज लेनी है। और इन्वर्टर 20 to 25% should be bigger। ठीक है, string input voltage rating has to be selected according to the available inverter rating। जो भी इन्वर्टर आपने लिया उसके बेसिस पे आप इनपुट वोल्टेज लोगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक कंपोनेंट के साथ लिंकिंग करनी है। एक कंपोनेंट कितना है, 20% हायर ये ले लिया, एफिशिएंसी का कुछ लगा दिया, लॉसेस का कुछ लगा दिया, उससे हमारे कैलकुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट करिए, स्पेसिफाइंग द बैटरी एंड द पीवी कैपेसिटीज। डेली एम्पियर आवर रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली मतलब जो आप यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आप यूज कर रहे हो उसको आपको बताना है। ठीक है, और ग्रॉस डेली डीसी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा आपका। यहाँ पे एफिशिएंसी, इन्वर्टर की एफिशिएंसी आ गई ईएसी डेली से, और उसके बाद ईडीसी डेली को हमने डायरेक्टली यूज किया। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ द बैटरी बैंक हमको चूज करना है। 12 के मल्टीपल्स में होता है ज्यादातर। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स में है तो 12, 24, 48 इस तरह से बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेली एम्पियर आवर रिक्वायरमेंट को हमको निकालना है तो बैटरी वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा ईडीसी को। ठीक है, बैटरी बैंक वोल्टेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टर। नेक्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन दी बैटरीज। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन दी बैटरीज भी होता है। अगर कोल्ड वेदर है तो बैटरी का परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंसी लो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि एक एनक्लोज्ड प्लेस पे आपको बैटरी को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। कोई भी बैटरी है तो उसको आपको 20% तो बचा के रखना ही पड़ेगा और फिर से उसकी चार्जिंग करनी होगी। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज दैट you don't discharge it up to 0%, it has to have at least 20% left, that means 80% आप बैटरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, डेज ऑफ ऑटोनॉमी इज, ऑटोनॉमी डेज मतलब 1 to 3 days। क्यों 1 to 3 days मतलब हर एक वीक में अगर आप देख रहे हो या पूरा शेड्यूल में अगर आप देख रहे हो तो आपको सनलाइट नहीं मिल रही तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो बैटरी कैपेसिटी वर्कआउट करना है, नंबर ऑफ बैटरीज इन पैरेलल कितनी होगी वोल्टेजेस के बेसिस पे और करंट के बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ बैटरी इन सीरीज लगा रहे हो तो चार्ज कंट्रोलर का रेटिंग जो है वो भी उसी के हिसाब से आपको, मतलब आपको 3 पैरामीटर्स हैं, करंट, वोल्टेज एंड पावर। इन तीनों को प्रॉपरली अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज करना है और उनको सिंक्रोनाइज करके ही आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर रही है चार्ज कंट्रोल। अब चार्ज कंट्रोलर में क्या करना है, एमपीपीटी भी बोलते हैं, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अरेंजमेंट। वो क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास ट्रैकिंग अरेंजमेंट है, अलग अलग टाइम में हम उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं। सनलाइट हमारी 0 से मतलब 9 बजे से 12 बजे तक टुवर्ड्स ईस्ट होती है, फिर वो 12 बजे बिल्कुल टॉप पे आ जाता है सन, और उसके बाद टुवर्ड्स वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको ही उसी को पूरा ट्रैक करना है। अगर हम सोलर कुकर ऊपर छत पे रख रहे हैं तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है, तो जो शिफ्टिंग वाला काम है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग अरेंजमेंट। सो एमपीपीटी इज दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज नोन एज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट करो, ये इस तरह का पैनल सीरीज में हो गया, ये देखा हमने। नेक्स्ट कर दो, ये पैरेलल में हो गया। नेक्स्ट करो, पीवी पैनल एरे डिजाइन जो है उसमें
सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन है और मोनोक्रिस्टलाइन है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 15 से 18% है, तो इसकी 12 से 16% है। ठीक है, एमरफस जो नॉन क्रिस्टलाइन है उसकी 4 से 8% एफिशिएंसी। तो आप देख रहे हो कि मोनोक्रिस्टलाइन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट करो। फिर ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है उन्होंने तो पढ़ा हुआ होगा कि ट्रांसफार्मर में कैसा क्या चीजें होती है, ट्रांसफार्मर में कितने ओपन सर्किट वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट। नॉर्मली ओपन सर्किट मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है और शॉर्ट सर्किट मतलब फुल लोड। ठीक है, शॉर्ट मतलब फुल लोड। ठीक है, उसको बिल्कुल विदाउट रेजिस्टेंस आपने ज्वाइन कर दिया। ओपन में मतलब आपने ओपन कर दिया। तो लोड से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको यूज करते हैं, और इस तरह का ग्राफ आपका करंट और वोल्टेज के बीच में आपको बना सकते हो। अगर डिटेल्स दी हुई है तो ये पावर को भी इसके करंट के पैरेलल में आप ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट, टेस्ट कंडीशन, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। ये वाला जो है टेबल स्पेसिफिकेशंस में आपको दिया रहता है, जो आप जिसमें आपको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज, ये वैल्यूज नॉर्मली जैसे इन्वर्टर आप यूज कर रहे हो तो उसमें वैल्यूज दी हुई रहती है। जो सप्लायर है, अगर हमने चार्ज कंट्रोलर लिया या इन्वर्टर लिया तो उसका एक स्पेसिफिकेशन चार्ट उसमें दिया रहता है जिसकी आपको डिजाइनिंग में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज विच इज important for the calculation. Next करें, determining the number of PV modules. PV modules तो भी हमने देख ही लिया कि लोड कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हमें करना है। यूनिट्स ऑफ वॉट्स करेंगे, सोलर रेडिएशन जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हमको थोड़ा सा एक पॉइंट पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, कैलकुलेटिंग एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पीवी एरे। ठीक, आउटपुट ऑफ अ पीवी एरे कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन सबको, एरे का वोल्टेज कितना है, दी एफिशिएंसी कितनी, दी केबल कितना है, पीवी एरे वोल्टेज मिनिमम शुड बी दी एरे का वोल्टेज कितना है। ये कैलकुलेशन इतने डिटेल में हमको करना नहीं पड़ता, जब हम कोई सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं डेटा। ठीक है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये पीवीसिस से हम शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पीवीसिस की जो स्क्रीन है, जीयूआई, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें आजकल जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज योर फ्रंट एंड, एंड देयर इज अ बैक एंड वेयर द कैलकुलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, तो फ्रंट एंड में आपको ये दिखेगा कि आपको क्या करना है, चूज अ सेक्शन, प्रिलिमिनरी डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, डेटाबेस करना है या टूल्स करना है। ठीक है, इसमें से आप इसमें से एक पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ, तो यहाँ पे सपोज आपने चूज अ सेक्शन में प्रिलिमिनरी डिजाइन चूज किया, ये इसका कलर अलग है, इसका अलग है ना, दैट मींस हमने चूज किया क्या है, प्रिलिमिनरी डिजाइन। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, फिर हमारे पास ऑप्शन आया कि ग्रिड कनेक्टेड चाहिए, स्टैंड अलोन चाहिए कि पंपिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब हमने इसको ग्रिड वाला ऑप्शन हमने चूज किया, तो ग्रिड वाले ऑप्शन के बाद हमारे पास ये सारे डायग्राम्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड, ऑफ ग्रिड, पंपिंग, बल्कि तीनों के ऑप्शन आए हुए हैं। ठीक है, और द 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हमको जीयूआई पे दिखेंगे। अब हमको उसमें बेसिकली तो क्लिक ऑफ अ माउस बटन, उसको आप करोगे तो आपको ये विल बी गेटिंग दिस। दिस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज फ्रीली डाउनलोडेबल, यू कैन ट्राई इट आउट, उसको आप कर सकते हो और उसमें आप चाहो तो एक छोटा सा मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें लोकेशन सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो ऑलरेडी अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो उसमें लोकेशन में आप चेंज मत करो, जो भी दिया हुआ है उसको नोट करो, फिर उससे करो। अगर आप इंडिया की कोई सिटी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओपन करना, ये आपका वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। इस तरह के पेजेस आपको आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे पीवीसिस के सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, इस तरह के पेजेस आपको दिखेंगे जिसमें आपने लोकेशन सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आ जाओ,
सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑन ग्रिड के लिए हमारे पास ये वैल्यूज है डिजायर्ड what we can do specified active area nominal power yield ठीक है tilt angle और azimuth angle can be selected तो यहाँ से आपको ये वाला ग्राफ है इसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट टिल्ट एंगल पे काम कर सकते हो तो फिर आपको क्या कह रहे हो यू आर कंपेयरिंग द टिल्ट एंगल जैसे 15 डिग्री ले लिया या 30 डिग्री ले लिया दोनों पे वर्कआउट करके आउटपुट टेक किया ठीक है तो आप दोनों पे कर सकते हो नेक्स्ट मॉड्यूल टाइप अगर आप चाहिए तो जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए इनबिल्ट आपके पीवी सिस्टम में मोनो स्टैंडर्ड है ना पॉली वो है टेक्नोलॉजी में मोनो प्लास्टिक है ये वाले ऑप्शंस हैं आपको इसमें से आपको ये डॉट वाला है मतलब आपने सेलेक्ट किया ठीक है इनको आपने सेलेक्ट किया तो आप कर्सर से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं ये माउंटिंग डिस्पोजिशन है कैसी रूफ है तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशंस लोड आइडेंटिफिकेशन स्टैंड अलोन सिस्टम में आपके पास ये इनपुट डेटा आपको फीड करना है अगर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलता है ये मैं जो फॉलो करती हूँ स्टडीज को ये चेतन सिंह सोलंकी सर की काफी सारे लेक्चर्स हैं जिनको मैंने पीवी के लिए लर्निंग में किया था तो आप लोग भी चाहें तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में थे लेकिन अब आजकल उन्होंने एनर्जी स्वराज का वो चलाया है तो वो उसमें बिजी है ठीक है तो ही हैज लेफ्ट द जॉब फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड ही इज वर्किंग एंड ही इज अ प्रोफेसर हु इज फ्रॉम मध्य प्रदेश तो ही इज वर्किंग एट हिज विलेज लेवल पे उन्होंने अपना बहुत काम किया बहुत डेवलपमेंट किया अब वो इंडिया लेवल पे सोशल सर्विस टाइप ही काम कर रहे हैं उनको सोलर एम्बेसडर भी बोलते हैं तो आई फॉलो हिम और वो काफी बताते जाते हैं चीजें ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये आप यहाँ पे आपको फीड करें ये मैंने आपको ये वाले स्लाइड पीपीटी में है ही यू कैन वर्क ऑन इट इसको अभी देख के समझ में नहीं आएगा जब आप इमेजेस को डाउनलोड करोगे उसमें से एक एक स्टेप पे आगे बढ़ोगे देन यू विल understand this you can have hands-on experience you can work on सिस्टम स्पेसिफिकेशन स्टैंड अलोन के लिए बैटरी का फेज ओरिएंटेशन करना है क्योंकि एरे साइज आपको करना है ठीक है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ओके बटन दबाना है तो वो आपका चॉइस को ले लेगा ठीक है तो यहाँ पे दो चीजें ऑप्शन हो गई एक तो हो गया टिल्ट एंगल दूसरा हो गया एजीमुथ एंगल एजीमुथ को 0 दिया है टिल्ट को यहाँ पे 30 डिग्री दिया है ठीक है तो ये ऑप्शन आप वर्क कर सकते हैं नेक्स्ट Results जो है result graphs and data is generated for global radiation on horizontal plane, global radiation on tilted plane, system output energy, economic loss evaluation. ये पैरामीटर्स जो हैं आप चेंज कर सकते हैं पावर चेंज कर सकते हैं मॉड्यूल का कॉस्ट चेंज कर सकते हैं जो आपका रेलेवेंट डेटा है उससे आप करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको रिजल्ट्स में मिलेंगे ठीक है करेंसी लोड फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी modified. Next है the result graphs and data is generated for ये सारे 4 ऑप्शंस हैं जिसके आपको ग्राफ मिल जाते हैं एवरेज अवेलेबल सोलर एनर्जी कितनी है अवेलेबल पर मंथ आपको कितनी मिल रही है जैसे अगर आप मंथ चेंज करते हैं जनवरी या अक्टूबर या जुलाई तो उसमें सब में आपकी ये वैल्यूज चेंज होगी ठीक है यू विल बी गेटिंग डिफरेंट एवरेज यूजर नीड्स पर मंथ नीड्स मतलब लोड कैलकुलेशन एसी का यूसेज आपका कितना होता है महीने साल भर में 4 महीने या 5 महीने ले लो है ना कुछ लोग शायद 8 महीने भी यूज करते हैं लेकिन आप अपने यूसेज के हिसाब से वो मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से यूजर नीड वाले ऑप्शन में जैसे आपने हीटर यूज किया ठंड में आप 2 महीने हीटर यूज करेंगे ठीक है तो उसको आप यूज ले सकते हैं state of the average state of batteries ले सकते हैं economic gross evaluation is evaluated parameters can be changed required autonomy required LOL battery system ये वैल्यूज आप पैरामीटर्स को अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं ठीक है बैटरी का वोल्टेज आपने चेंज कर दिया सोलर पैनल का सीरीज पैनल कॉम्बिनेशन चेंज किया तो आप इस तरह से अलग अलग डिजाइन के आउटपुट देख के
उसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आपको ये पेज दिख रहा है, ये जो शुरू का ही पेज है जिसमें प्रोजेक्ट डिजाइन है। आप ये प्रोजेक्ट डिजाइन आपने क्लिक किया, पहले आपने प्रिलिमिनरी डिजाइन किया था, अब आप प्रोजेक्ट डिजाइन ले लो, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसको आपको वर्कआउट करना है। नेक्स्ट, फिर आपको प्रोजेक्ट दिल्ली का ये लिया हुआ है प्रोजेक्ट। अगर ये आपने प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, आपके पास इसकी फाइल है, तो यू कैन यूज सेलेक्ट दैट ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है आपको ये लोकेशंस है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और चाहिए तो ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हिली एरिया है तो ऑल्टीट्यूड में आ जाएगा। ठीक है, और सी लेवल वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जिसके हिसाब से आपने यहाँ पे अपना साइट को चूज करना है। वो ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें ये वाले पॉइंट्स डाल के, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और एजीमुथ 0 पे ही काम किया है, ईयरली मेट्रो हील है, तो ये आप अलग अलग वेरिएशंस में ओरिएंटेशन और फील्ड वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, नेक्स्ट करिए। फिर लोड डेफिनेशन है। लोड डेफिनेशन से आप डाल सकते हो कौन सा टाइप का लोड है। ऑफकोर्स इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है। तो लोड्स 3 ही टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लोड सिलेक्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैटरी बैंक डेफिनेशन। बैटरी बैंक डेफिनेशंस में आप बैटरी का जो डेटा है, जैसे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का है, वोल्टेज कितना है, कितना हाउ मच is working for the battery, how many number of batteries, what type of batteries you are using. लेड एसिड बैटरी बहुत पॉपुलर है आजकल। जो मोबाइल में यूज होती है वो कौन सी है? लिथियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में वो यूज होती है, तो आप उसके साथ भी सिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरे डेफिनेशन आपने जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इस पेज पे आपको पुट करना है। नेक्स्ट, that is about the PVCist. PVCist का एक वर्जन 7 का एक केस स्टडी है, उसमें ग्राफ्स आपको अच्छे से दिखेंगे। ये मैंने आपको डिजाइनिंग के स्टेप्स बताए। ठीक है, फिर मेरा एक स्टूडेंट ने उस पर काम किया हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। केस स्टडी वाला खोल दीजिए प्लीज। हाउ मच टाइम वी हैव गॉट? हो गया क्या? मैं 5 मिनट्स में दिखाती हूँ लास्ट। ठीक है, केस स्टडी वाला जो ऊपर है। हाँ हाँ, हाँ, ये जो है PVCist 7 का सिमुलेशन है। ठीक है, तो PVCist का सिमुलेशन है, उसमें ही हमने वर्कआउट किया है। तो इसको करिए। नेक्स्ट, आउटलाइंस। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको क्विकली मूव ऑन करेंगे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट्स PVCist से किस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, ये बेसिकली BIPV इज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, BIPV। ठीक है, तो BIPV मतलब बिल्डिंग के फैकेट्स पे, सिर्फ रूफ पे ही नहीं, फैकेट्स पे भी आप सोलर पैनल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिटरेचर रिव्यू है इसके बारे में। नेक्स्ट, इसको पूरा हटा दीजिए लिटरेचर रिव्यू को। इसमें कुछ पेपर्स, हाँ, ये आपके क्लाइमेटिक जोन से इंडिया का, दीज आर द क्लाइमेटिक जोन ग्राफ। क्लाइमेटिक जोन्स में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके क्लाइमेट्स है, हॉट एंड ड्राई, 6 रेंज है, 6 क्लाइमेट। इनको कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि कोल्ड और क्लाउडी और सनी को एक ही में मर्ज करते हैं। तो कुछ बुक्स में 5 भी आते हैं और कुछ में 6 भी आते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है उस प्लेस का, दैट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, तो मतलब ये हर एक क्लाइमेटिक जोन के टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोल्ड एंड सनी। नेक्स्ट,
कंपोजिट, कंपोजिट ये भोपाल का है, ठीक है। तो हम जब बात करेंगे भोपाल की तो कंपोजिट रेंज आएगा। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीवी सोलर सेल ये हम देख चुके हैं, ये फोटोग्राफ्स के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट, बीआईपीवी के प्रोडक्ट्स, बीआईपीवी में पैकेज में कैसे आप पैनल्स, ये पैनल देखिए आपके सुंदर भी लग रहे हैं और इट इज गिविंग यू इलेक्ट्रिसिटी आल्सो ओवर द यूजिंग फ्रॉम द बिल्डिंग। नेक्स्ट, फोटोवोल्टाइक सिस्टम टोपोलॉजीज। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशंस है, ओके। हाँ हाँ, ये वाले पे आइए, साइट एंड कनेक्शन वाला जो पार्ट था, बैक बैक, हाँ इसके बाद फ्रंट, वापिस एक और आगे और आगे, इसके भी आगे और एक दो, एक और, ये सब उसी क्लाइमेक्स के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। माउंटिंग मेथोडोलॉजी है, डिफरेंट पैकेट्स, पैकेट्स मतलब बिल्डिंग का फ्रंट एज जहाँ पे आपको सनलाइट मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देखना फैक्टर्स अफेक्टिंग बीआईपीवी, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, साइट और लोकेशन, ओरिएंटेशन, टिल्ट एंगल, टेम्परेचर, परफॉर्मेंस ऑफ इन्वर्टर, वायरिंग, शेडिंग, डर्ट एंड डस्ट। इतना सारा फैक्टर्स हैं जिसको हमको स्टडी करना पड़ता है अगर हम कोई स्टडी करने के लिए किसी बिल्डिंग को ले रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, सिमुलेशन प्रोसेस, पीवीसी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ये 7 वर्जन है, वो उससे पहले जो मैं आपको बताई थी वो 6.8 था, ठीक है। ये स्क्रीन ऑफ पीवीसी ये ओपन किया, ग्रेट है ना। इस 7 में थोड़ा सा चेंजेस है फ्रंट उसमें, अभी जो रिसेंट चल रहा है वो 8 ही आ गया होगा, ठीक है। तो उसके अलावा उसी के हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट, क्या क्या करना है आपको, ये स्टेप्स हैं सारे। नेक्स्ट, ये जैसे ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो अलग अलग सिटीज लिए हैं, कितनी 6 सिटीज लिए हैं यहाँ पे, सिटीज आर 6 cities which has been taken, तो उनका डेटा ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमने लिया है। नेक्स्ट, मंथली ग्लोबल ये आपको सिलेक्टेड सिटीज का सोलर रेडिएशन कितना मिल रहा है ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिया कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट, पीवी का माउंटिंग मेथड जो है, ठीक है, तो ये इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट, सिस्टम असेंबलिंग एंड डिजाइन किया है इसी सॉफ्टवेयर में। ये पेज, ये वाला जो व्यू है ये सब आपको सिस्टम पे दिख रहा है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमुलेशन रिजल्ट्स हम देखना चाहते हैं, तो इसमें रिजल्ट्स जो हैं 3 मेन पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, मॉड्यूल एरिया, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, परफॉर्मेंस रेशियो और एरे एफिशिएंसी, ठीक है। ऑल दीस थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड। नेक्स्ट, सिमुलेशन फॉर 3 फेज पीवी टेक्नोलॉजी इन अहमदाबाद, तो अलग अलग आप देख सकते हैं ऊपर, मोनो, पॉली और हाइब्रिड, ठीक है। ये तीनों के लिए मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किए, आप मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल मैन्युफैक्चरर्स का डेटा है उसके हिसाब से यू कैन पुट द मेक द चेंजेस। नेक्स्ट, अहमदाबाद, ये वेवफॉर्म्स इस टाइप के आपको पीवी सिस्ट में दिखते हैं ये ग्राफ्स, तो वो आप उसमें से चूज करके उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, manufacturer model, all these things are available. Simulation result, पीवी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ का है, बैंगलोर, ये बैंगलोर सिटी का है रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है जी, इस तरह से ये बैंगलोर के ग्राफ्स हैं और वो टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट्स है, तो ये आपको पीवी सिस्टम में मिलते हैं। यू कैन स्क्रॉल द साइट्स फॉर 6 cities, नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख लीजिए आप। ये कोलकाता का है, ये भोपाल का है, भोपाल के ग्राफिकल पार्ट्स, और उसके बाद फिर माउंट आबू का है ये, परफॉर्मेंस रेशियो, एरे एफिशिएंसी, ये सारे डेटा आपको, आपने इनपुट क्या डाला था, ज्योग्राफिकल इनपुट ज्यादा डाला था, बाकी आपका इस प्रोसेसिंग जो है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है। ओके, श्रीनगर के लिए हो गया, देन दीस आर द कंक्लूजन्स फॉर दिस
So this is a type of case study which I wanted to show to you people कि हमने अभी तक कितना पढ़ा. सोलर एनर्जी हमने देखा, सोलर एनर्जी का यूसेज समझा, उसके बाद फिर हमने पीवी सिस्ट को भी देखा, फिर पीवी सिस्ट के स्टेप्स देखे, उसके बाद पीवी सिस्ट में किया हुआ एक प्रॉब्लम देखा. ठीक है. So this is all about today's lecture. I would like to close it down now. Thank you.